Hello students, in last class we discussed about energy stored in a parallel plate capacitor, that is U equal to 1 upon 2 QV equal to 1 upon 2 CV square equal to Q square by 2C. So here in today's class we discuss energy density of a parallel plate capacitor. Energy density of a parallel plate capacitor. So energy density is denoted by small u, and given as energy density is the total energy stored per unit volume of a given condenser. Energy density is the ratio of total energy contained or total energy in a given volume of a condenser. मतलब किसी दिए हुए वॉल्यूम का कंडेंसर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है उसी को एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है. सो एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड per unit volume of a given condenser, and given as energy density small u equal to total energy small u upon volume V. So we know that total energy stored in a capacitor is equal to 1 upon 2 CV square upon volume. Means if a parallel plate capacitor in which plate area is capital A and distance between plate is small d, then volume of parallel plate capacitor is equal to area into height, means area into distance. So A into D is the volume of parallel plate capacitor. But we know that the capacity of a parallel plate capacitor C equal to epsilon naught A by D, and potential difference across the ends of parallel plate capacitor B equal to E into D, because we know that the formula E equal to dV by dr. If we consider dV equal to V and R equal to D, means V is the potential on the plate and D is the distance between the plate. So electric field intensity between the plate E equal to V by D, and after transferring we get V equal to ED. Putting the value of V equal to ED, we can get, putting these value in equation 1, U equal to 1 upon 2 epsilon naught A by D, and V square means C square D square upon AD. So we get, after solving, U equal to small u, energy density is denoted by small u, so U equal to 1 upon 2 epsilon naught E square. So this is the formula for energy density, and SI unit of energy density small u equal to एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. सो यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू जूल पर मीटर क्यूब. एंड डायमेंशन, सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क, so is equal to ml2 t minus 2, and dimension of volume equal to L3. After solving you get ml minus 1 t minus 2. This is the formula for energy density. So by but इसके आगे क्या कर रहा है कि वेन ए डाइलेक्ट्रिक आप कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, देन यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दिया जाए या कोई इंसुलेटिंग सबस्टेंस रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तब इसी यू का फार्मूला हो सकता है 1 अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. सो इसको लिखा जा सकता है 1 upon 2 epsilon E square, where epsilon is called the permittivity of a given medium. So this is the formula for energy density of parallel plate capacitor. So and next we discuss what is common potential. So students, once again we discuss about common potential. So here when two कैपेसिटर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर का चार्ज भी क्या हो? अलग अलग हो. अलग अलग पोटेंशियल पे इनको चार्ज किया जाता है. सो हियर कंसीडर टू कैपेसिटर
आप चार्ज एट डिफरेंट पोटेंशियल, इनको चार्ज किया जाता है, इस तरह से चार्ज किया जाता है कि इनका पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, कनेक्ट हो किससे, कंडक्टिंग वायर से। सो हियर वी कंसिडर देन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लो फ्रॉम at higher potential to the lower potential. This flow of charge continue till their potential become equal. मान लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, इन दोनों को चार्ज किया जाता है। चार्ज किया जाता है तो पहले वाले का पोटेंशियल V1 हो जाता है, दूसरे वाले का पोटेंशियल क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। ऐसा सपोज करते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। सो अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो जब दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो चार्ज है वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगता है और चार्ज फ्लोज कंटिन्यू टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या न हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि दोनों का इक्वल पोटेंशियल क्या है, V है। जब दोनों का इक्वल पोटेंशियल V हो जाता है तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। यही पोटेंशियल क्या कहा जाता है, कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। सो V इज द कॉमन पोटेंशियल। तो अगर सपोज किया जाए कि C1 एंड C2 आर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड V1 and V2 are the potential before transferring the charge or charge to the potential V1 and V2 respectively. Then total charge before sharing. So total charge before sharing क्या हो जाएगा, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो शेयर से पहले इनका पोटेंशियल कितना है, V1 है, कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। तो इनका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस इनका कितना हो जाएगा, C2 V2। आफ्टर शेयरिंग बोथ गेन अ कॉमन पोटेंशियल कैपिटल V, देन टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इज इक्वल टू C1B प्लस C2B। तो यहाँ से क्या हो सकता है, C1B प्लस C2B लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू B। ऐसा कहा जाता है कि चार्ज के ट्रांसफर होने में किसी तरह का कोई भी लॉस नहीं होता है। बिफोर चार्ज के शेयर होने के बाद किसी भी तरह का चार्ज लॉस नहीं होता है। तो लिखेंगे as no charge is lost in the process of sharing। शेयरिंग के प्रोसेस में कोई चार्ज लॉस नहीं होता है। देयरफॉर जो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग होगा वही किसके इक्वल होगा, आफ्टर शेयरिंग के। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना है, C1B प्लस चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना है, C1B1 प्लस C2B2। आफ्टर शेयरिंग कितना है, C1 प्लस C2B। तो हियर वी कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल B। तो B इक्वल टू C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द फार्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। यही क्या है, कॉमन पोटेंशियल के लिए फार्मूला है। तो सीधा सीधा आपको वंस अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि इनिशियली हमारे पास दो कैपेसिटर हैं। पहले वाले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे वाले का क्या है, C2 है। इनको चार्ज किया जाता है। चार्ज किया जाता है तो पहले वाले को पोटेंशियल V1 तक किया जाता है, दूसरे वाले को V2 तक किया जाता है। तो चार्ज होने के बाद टोटल चार्ज इन बोथ कैपेसिटर इज इक्वल टू C1B1 प्लस क्या होगा, C2B2, क्योंकि Q इक्वल टू CB फार्मूला होता है। बट
अब चार्ज करना बंद कर देते हैं और V1 क्या होता है, ग्रेटर देन V2 होता है। तो इनको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जब कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करने लगता है, और चार्ज तब तक फ्लो होता है जब इसका दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और सेम में कितना हो जाता है, V हो जाता है। जब दोनों का पोटेंशियल V हो जाता है तो उस कंडीशन में टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग कितना होगा, C1 प्लस C2 इंटू V हो जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज आफ्टर शेयरिंग, सो चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग। इक्वल करके हम लोग क्या पा सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी से एक नया फार्मूला भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जो नया फार्मूला कैलकुलेट किया जाएगा वह क्या होगा, अगर यहाँ से ट्रांसफर किया जाए तो क्या पाएंगे, C1V प्लस C2V इक्वल टू क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2। इसे रिलेशन नंबर जो भी बनाना होगा बना लीजिएगा 2। रिलेशन नंबर 2 के हेल्प से यह लिखा जा सकता है C1V प्लस C2V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। तो यहाँ से लिखा जा सकता है C1V माइनस C1V1 इक्वल टू C2V2 माइनस C2V। C1V तो या तो ये भी लिखा जा सकता है, इसको माइनस कॉमन लेने के बाद C1V1 माइनस C1V इक्वल टू C2V माइनस C2V2। तो C1V1 क्या है, C1V1 पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज होने से पहले शेयर से पहले का चार्ज है, और C1V क्या है, शेयर के बाद का चार्ज है। तो इसे कहा जा सकता है चार्ज लास्ट बाई वन कैपेसिटर। पहला वाला चार्ज को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये भी पता है क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है। तो चार्ज ट्रांसफर होने से पहले इसके पास जो चार्ज था क्या था, C1V1, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल V1 है। चार्ज को लॉस करने के बाद इसका टोटल चार्ज जो होता है C1V होता है। तो C1V1 इसका पहले का चार्ज है और C1V शेयरिंग के बाद का। तो इसे लिखेंगे चार्ज लास्ट बाई फर्स्ट कैपेसिटर इक्वल टू C2V। इसका चार्ज के शेयर होने के बाद इसका जो टोटल चार्ज है वह क्या है, C2V है, क्योंकि शेयर होने के बाद कॉमन पोटेंशियल क्या था, V था, और शेयर होने के पहले कितना था, C2V2। तो इसका जो बचेगा क्या होगा, बाद में से पहले का घटाएंगे तो यह गेन किया, तो लिखेंगे चार्ज गेन बाई सेकेंड कैपेसिटर। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि पहला वाला जितना चार्ज लॉस करता है दूसरका वाला कैपेसिटर उतना ही चार्ज गेन करता है। सो देयर इज चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग। बट यह केवल चार्ज के केस में है, देयर इज नो इन द केस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के केस में ऐसा नहीं है कि चार्ज पोटेंशियल लास्ट बाई फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल लास्ट बाई सेकेंड कैपेसिटर। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू V को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑन एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। चार्ज जो हम शेयर किए हैं, जो कॉमन पोटेंशियल फाइंड किए हैं, उस केस में कितना एनर्जी लॉस हुआ है। तो पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है। दूसरा का जो है किसका कैपेसिटेंस C2 है, V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है। चार्ज के शेयर होने के बाद जो दोनों कॉमन पोटेंशियल गेन करते हैं वो क्या करते हैं, V गेन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। तो पहले वाले का एनर्जी हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का हो जाएगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर, जो हम पहले से पढ़े हैं। CV फार्मूला पढ़े हैं तो CV स्क्वायर पहले का C1 V1 स्क्वायर, दूसरे का क्या हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग कितना होगा, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि शेयर के बाद दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाता है, V हो जाता है। तो फार्मूला जो 1/2 CV स्क्वायर है दोनों रख देते हैं तो 1/2 V स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा।
तो अब इसके हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, लॉस इन एनर्जी निकालना है। तो लॉस इन एनर्जी निकालना तो सबसे पहले V की वैल्यू, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमको पीछे पता था, वहाँ से रखते हैं 1/2 C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू आप लोग पीछे से बताइए। तो कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू था C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ पे रख देते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। यह क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग हो जाएगा। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्या करेंगे, आफ्टर शेयरिंग में से बिफोर शेयरिंग वाले एनर्जी को माइनस कर देंगे। इतना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी आफ्टर शेयरिंग माइनस एनर्जी बिफोर शेयरिंग। तो क्या हो जाएगा, इसको डेल यू से दिखा देते हैं। तो एनर्जी बिफोर आफ्टर शेयरिंग में कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2 माइनस इधर कितना था 1/2 C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। लेकिन ऐसा पाया जाता है कि एनर्जी लॉस होती है, तो मतलब इसका मतलब एनर्जी पहले से अधिक रही होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरके वाले में से पहला वाला घटाते हैं। क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस करेंगे, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है, मतलब पहले वाले की अधिक रही होगी, दूसरे वाले की कम रही होगी। तो ओवरऑल अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कर लेंगे तो जो लॉस इन एनर्जी के लिए फार्मूला आएगा वह क्या आएगा, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान कितना होगा 2 C1 प्लस C2। यही हमको क्या होगा, लॉस इन एनर्जी के लिए फार्मूला मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉस इन एनर्जी के लिए फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, या इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।